Hello learners, this is your trainer Aishwarya Seth and a very warm welcome to you all to this India's first social and revolutionary educational channel that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. So this is a very new but even very fast growing educational channel where students from all over India can get complete and full-fledged coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, NBS, Master Cadre, ETT, NTT, B.Ed, M.Ed and much more. So I started this channel with the main objective of imparting free of cost complete coachings of these exclusive courses to those students who can't afford them and they have to compromise with their dreams. So students, this channel is the golden opportunity to you. Just subscribe this channel and get 100% free complete coachings of these various exclusive courses absolutely free of cost all over India. Moreover, you don't need to go for any expensive online and offline coachings, study material, notes, books, test series, etc. No need to purchase all these things. If you subscribe this channel, your all purposes will be solved automatically. So I started this channel on 1st April 2020 and till now I taught you the complete and full-fledged topics of research aptitude, teaching aptitude, communication of UGC paper 1 and simultaneously all classes of CTET, PTET, NBS, KVS are also running on this same channel, and in this we have covered all the CDP, that is child development pedagogy theories completely. The 8th unit of UGC paper 1, that is ICT, is going on, in which the basics of computer series part 4 is going on. So today I will cover the part 4, and in this part 4 I am going to teach you various topics just like computer codes, computer networks and their topologies, threats to computer security in a detailed manner. So let's start with the presentation, computer basics part 4. ठीक है जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियोस मेरे पहले लॉन्च हो चुकी हैं उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स पार्ट 4 में। और आज सबसे पहले आज की सीरीज़ में हम करेंगे कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं। इसमें से यूजीसी में एक क्वेश्चन पक्का आता है, सो बहुत लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो कोड्स आर इंस्ट्रक्शंस। कोड्स क्या होते हैं? जिन इंस्ट्रक्शन, एक सिंप्लीफाइड टर्म्स इसमें बोलते हैं कि कोडिंग इज़ द एक्ट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। ठीक है जी, कंप्यूटर एक मशीन है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी भाषा और है, कंप्यूटर की लैंग्वेज और है। ठीक है जी, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? 0 और 1 की लैंग्वेज को। ठीक है जी, तो उसको समझाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन की जाती हैं कोडेड मैनर में कोड्स डिज़ाइन किए जाते हैं। ये हम और आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, बड़े बड़े डेवलपर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, ठीक है, लैंग्वेज प्रोग्रामर्स, वो डेवलप करते हैं इस तरह के कोड्स ताकि हम जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। सो दीज आर बेसिकली द कोड्स। ठीक है जी, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर एंड बाइनरी कोड। कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है? बाइनरी कोड की। बाइनरी कोडेड में जो भी हम उसको समझाते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, वो वही समझता है। ठीक है जी, so computers can understand the instructions written in the binary code, and binary code is a coding system that uses only zeros and ones। मतलब कि 0 को हम यहाँ पे ऑफ बोलते हैं, 1 को ऑन बोलते हैं। ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में जो है कंप्यूटर समझता है। ठीक है जी, सो इंस्ट्रक्शंस उसी फॉर्म में जो है वो लिखी जाती हैं और उस टर्मिनोलॉजी को, उस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं कंप्यूटर कोड्स। ठीक है जी, सो कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर यूज बाइनरी कोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा इंटरनली। जो भी उसका इंटरनल डाटा हम उसको फीड करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो उसको डालते हैं। ठीक है जी, अ ग्रुप ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट्स वेरी एवरी सिंबल दैट अपेयर्स इन द डाटा। बिट्स होती हैं, ठीक है जी, ग्रुप ऑफ बिट्स 0 1 1 0 0 0 0 1 1, इस तरह से कोड्स बने होते हैं। कंप्यूटर जो समझता है, बिकॉज वो 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है, तो उसको हम कंप्यूटर कोड्स बोलते हैं। जिस कोड्स में या जिस तरीके से हम पैटर्न बना देते हैं 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो कंप्यूटर कोड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंबल इज कॉल्ड बाइट, और 1 बाइट इज इक्वल्स टू 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है जी, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो ये इस तरह से कंप्यूटर कोड डेवलप हुए होते हैं। और कंप्यूटर कोड्स के 4 वैसे बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं: BCD कोड, EBCDIC, ASCII कोड, यूनिकोड। ठीक है जी, ये 4 तरह के यूजीसी के सिलेबस
सिलेबस के अकॉर्डिंगली इस कोड्स में से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो बहुत सारे कोड्स होते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, लेकिन जो 4 कोड्स मैं आपको समझाने जा रही हूँ यही पेपर में जो है ये पेपर के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है जी। यही सिलेबस में है, BCD, EBC, DIC, स्काई कोड एंड यूनिकोड। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। BCD कोड क्या होता है? इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ क्लास ऑफ बाइनरी एनकोडिंग्स ऑफ डेसिमल नंबर्स वेयर ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, यूजुअली 4 और 8, ऑल्दो अदर साइजेस ऑल्सो सच एज 6 बिट्स हैव बीन यूज्ड हिस्टोरिकली, ठीक है जी। तो पहले क्या होता था 0 1 और इस फॉर्म में हम पैटर्न्स बनाते थे। और यहाँ पे क्या है, BCD कोड में क्या होता है, डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल डिजिट्स होते हैं, उनके जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग जो है जो कोड्स डेवलप किए जाते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड। और वो कौन सा होता है? BCD कोड। क्या बोलते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल। उनको बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। और एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंगली उसका हम बना रहे हैं बाइनरी कोड, ठीक है जी। सो स्पेशल बिट पैटर्न्स आर समटाइम्स यूज्ड फॉर अ साइन और फॉर देयर इंडिकेशंस। तो इस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं BCD कोड्स की जो एक मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से जो है वो बनते हैं। डेसिमल डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, कोई भी डिजिट होता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली BCD कोड इस तरह से डेवलप किए होते हैं। और यही एक्चुअल कोड्स हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट बाइनरी नंबर एक्सप्रेसेस ईच डेसिमल डिजिट विद द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड्स। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो। 2 का क्या है? 0010, 3 का क्या है? 0011। तो इस तरह से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाली अपकमिंग वीडियोस में वन ऑफ द वीडियोस रहेगी जिसमें मैं आपको कन्वर्जन्स करवाऊंगी, ठीक है जी। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्जन्स भी कई बार आती हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस तरह से, ठीक है। और बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली कन्वर्जन्स आती हैं। कई बार एक क्वेश्चन कन्वर्जन का आ जाता है 2 मार्क्स का, तो फिर हमने 2 मार्क्स भी क्यों छोड़ने हैं? बिल्कुल नहीं। और आगे जो अपकमिंग वीडियोस, आप हर एक वीडियो देखिए, हर एक वीडियो जो है क्रक्स है, जो भी कंप्यूटर में या कोई भी जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है जी। तो आप अपकमिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं कन्वर्जन्स भी सिखाने वाली हूँ, ठीक है जी। प्रैक्टिकल पोर्शन इसका होता है कंप्यूटर्स का, वो भी सिखाऊंगी आपको, सब कुछ सिखाऊंगी, डोंट वरी। बट हम एक क्या है कि सीरीज वाइज चल रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है? EBC DIC। EBC DIC का कोडेड का जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कोड है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जिसको बोलते हैं EBC DIC। और कई बार क्या होता है, आपको इन कोड्स की फुल फॉर्म्स ही आ जाती हैं। तो कई बार फुल फॉर्म्स भी हमें नहीं पता होता है हमारे माइंड में, तो फिर हम वहाँ पे जो है वो तुक्का लगा के आते हैं, ऐसा नहीं करना। इसकी फुल फॉर्म्स भी याद करनी है। इज़ अ 8-bit करेक्टर एंड कोडिंग यूज मेनली ऑन IBM मेन फ्रेम्स एंड IBM मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह की जो कोडिंग है, ठीक है जी, वो किस में यूज़ होती है? मेन फ्रेम्स में और मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। EBC DIC डिसेंडेड फ्रॉम द कोड used with punched cards and corresponding 6-bit binary coded decimal code used with the most of IBM's computers peripherals of the late 1950s and 1960s, ठीक है जी। तो ये टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई थी? लेट 1950s और 1960s में, और अब तक जो है वो चल रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और यहाँ पे क्या होता है, अब आगे पढ़ी इस अभी मैं आपको ये बताती हूँ इसमें क्या क्या होता है। बेसिकली आगे स्काई कोड आ गया, तो इसमें और भी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि इसमें हम क्या बनाते हैं। EBC DIC में इट अलाउज 2⁸ इज इक्वल्स टू 256 कॉम्बिनेशंस ऑफ बिट्स। क्या बनाते हैं? याद रखिए कि 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बिट्स बनाते हैं बाइनरी कोड फॉर अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक करेक्टर्स। किस किस की बनाते हैं? बाइनरी कोड्स बना रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक करेक्टर्स की बना रहे हैं। और कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं डिफरेंट बाइनरी कोडेड डेसिमल्स के। 256, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया था। इट अलाउज 2⁸ दैट इज 256 कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, ठीक है जी।
सो ये इसका है करेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स, ठीक है। एक करेक्टर जो है वो 8 बिट से रिप्रेजेंट करता है और टोटल कितने होते हैं 256 कॉम्बिनेशंस ऑफ बिट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है एस्काई कोड, ASCII, इसको हम क्या बोलते हैं वर्बली एस्काई कोड बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन तकरीबन मतलब 99.9% इस पे ही क्वेश्चन आता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, कई बार इसकी जो इसमें जो यूज़ होती है टर्मिनोलॉजी उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको भी ध्यान से देखिए। वैसे तो आपको हर कोड ध्यान से देख के सुनना पढ़ना है, ठीक है जी। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्काई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम originally based on the English alphabet that encodes 128 specified characters, the numbers 0 to 10, the letters A to Z and A to Z, even capitals also, some basic punctuation symbols, some control codes that originated with the telebyte machines and a blank space into the 7-bit binary integers. एस्काई कोड सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस पे क्वेश्चन क्यों आता है, बिकॉज इसमें सब तरह के चाहे वो करेक्टर्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो पंक्चुएशन सिंबल्स हैं, कोड्स हैं, ठीक है, ये सबके ही कोड्स बनाए होते हैं। सिर्फ डिजिट्स के नहीं बनाए होते, सिर्फ डेसिमल्स के नहीं बनाए होते, सबके अल्फ़ा, क्योंकि इसको क्या है अल्फ़ाबेट्स के भी कोड्स होते हैं इसमें, और इसमें जो है वो नंबर 0 से लेकर 9 नंबर तक भी कोड्स होते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों ही, अल्फ़ा भी है न्यूमेरिक भी है, दोनों तरह के कोड्स जो हैं इसमें कोडेड मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या है कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग 128 इंग्लिश करेक्टर्स एज वेल एज नंबर्स। कितने हैं याद रखिए 128 स्पेसिफाइड करेक्टर्स एज वेल एज नंबर्स, ठीक है जी। एंड विद ईच लेटर असाइंड अ नंबर फ्रॉम 0 to 127। एक हर एक मतलब ये जो 128 मैंने आपको बताया स्पेसिफाइड करेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है ये पैटर्न चलता है, और यहाँ पे 0, क्योंकि 128 कैसे बना, 0 क्या स्लैब है इसकी 128 की 0 to 127, ठीक है जी। तो इस तरह से स्लैब में 0 to 127 जो है ईच लेटर विद ईच लेटर असाइंड अ नंबर फ्रॉम 0 to 127, ठीक है जी। और इसमें क्या है इट रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट इन कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड अदर डिवाइसेस दैट यूजेस टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट भी है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक्स भी हैं और टेक्स्ट भी है, सब कुछ है, उसके कोड्स बने होते हैं। स्काई इंक्लूड्स डेफिनेशंस ऑफ 128 करेक्टर्स, 33 आर नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल करेक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ टेक्स्ट एंड स्पेस आर प्रोसेस्ड, ठीक है जी। 33 क्या है इसमें भी बाइफिकेशंस है। 33 क्या है इसमें नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल करेक्टर्स, ठीक है जी। एंड 95 प्रिंटेबल करेक्टर्स इंक्लूडिंग द स्पेस विच इज कंसिडर्ड एन इनविजिबल ग्राफिक। तो ये आपको 128 की फर्दर बाइफिकेशन है, जिसमें 33 जो नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल करेक्टर्स है और 95 प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं। तो ये आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी है और ये फैक्चुअल है, और इसको हमें माइंड में बिठाना पड़ेगा कि स्काई में 128 करेक्टर्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 0 to 127 जो इसकी स्लैब होती है, एंड यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों की कोडेड चीज़ें बनाई जाती हैं, पैटर्न्स बनाए जाते हैं, और ये सब कुछ हर एक, और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ये वास्ट हो गया, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेटिक्स भी हैं और न्यूमेरिक्स भी हैं, ये वास्ट कोडेड है, और ये बहुत आजकल तो जो चलता है लेटेस्ट स्काई कोड ही होता है। नेक्स्ट लास्ट में हम करेंगे यूनिकोड। लास्ट कोड है यूनिकोड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी करेक्टर नो मैटर व्हाट द प्लेटफॉर्म, नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम, नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज, अलाउज फॉर मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट यूजिंग एनी और ऑल द लैंग्वेजेस यू डिजर्व। हर तरह, अब ये और भी ज़्यादा एडवांस हो गया, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा एडवांस ये है, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस में आएगा अभी यूनिकोड। लेकिन जो आजकल ज़्यादा लेटेस्ट चलता है स्काई कोड चलता है यहाँ पे। बट यूनिकोड में वो क्या कह रहे हैं, नो मैटर व्हाट द प्लेटफॉर्म, नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम, नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज, हर तरह का मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट जो है, किसी भी तरह का टेक्स्ट है, उसके डिफरेंट जो है यूनिक पैटर्न्स बनाए गए हैं यूनिकोड में। देखिए ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, जिस टर्मिनोलॉजी में कंप्यूटर्स में कोड्स डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। और यहाँ पे यूनिक नंबर जो है फॉर एवरी करेक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं यूनिकोड में, तभी इसको यूनिकोड बोलते हैं। यूनिकोड में फर्दर बाइफिकेशंस UTF-8, UTF-16, UTF-32। UTF-8 इज़ यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8,
and UTF-16 Unicode Transformation Format 16 and UTF-32 Unicode Transformation Format 32। ये सब टाइप्स हैं यूनिकोड की, इसको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दी कि ये उसकी सब टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। सो यहाँ तक जो है हमने कंप्यूटर कोड्स किए, जिसमें से एक क्वेश्चन काफ़ी सेट्स में जो है वो देखने को मिलता है और आता भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ दी कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनकी टाइप्स हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए लैन। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं कि किस तरह का, देखिए नेटवर्क क्या है, जिसमें सब कंप्यूटर लिंक्ड हैं, सारी जो हैं नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं एंड अदर कंप्यूटर सब जो है इंटरकनेक्टेड है, वो नेटवर्क हो गया, ठीक है जी। अब नेटवर्क्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। लैन, इस पर भी क्वेश्चन कई बार आता है। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्किंग, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क हो गया लैन, ठीक है जी। इसमें क्या है, अब यहाँ पे कौन सा, ये किस तरह का नेटवर्क होता है, जिसमें एक बिल्डिंग, सपोज एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ है, this network is only for a specified building, एक within a building the network that network operates is called the LAN network, local area network। तो एक बिल्डिंग में ये सर इसकी कितनी रेंज होती है, एक बिल्डिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं WLAN, ये क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन में ये कनेक्टेड था वायर्स के थ्रू, अब WLAN है, ये कनेक्टेड है तो वही लैन ही है, लेकिन इसकी एक वर्जन नहीं आ गई कि उसमें पहले लैन में क्या है वो वायर से कनेक्टेड है नेटवर्क जो है एक सेम बिल्डिंग में। अब क्या है, VLAN में क्या है, एक सेम बिल्डिंग में जो नेटवर्क क्रिएट हुआ पड़ा है वो क्या है, वायरलेस है, विदाउट वायर्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कैसे कि ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4, इवन 4 और 5 लैंड्स, ठीक है, जिसमें 4-5 लैंड्स आपस में, क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल एरिया या जो इसकी रेंज है वाइड एरिया नेटवर्क की, क्योंकि इसका नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज लैंड से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। सो यहाँ पे जब 4-5 बिल्डिंग्स का आपस में नेटवर्क बना हो या फिर 4-5 लैंड्स आपस में सब मर्ज होकर एक प्रॉपर बहुत बड़ा वाइड नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। सो नेक्स्ट क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। इसका मतलब क्या होता है, एक सिटी, पूरे एक शहर में जो नेटवर्क फैला हुआ है, एक सिटी का फुल फ्लेज नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। ये नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, विद इन अ सिटी, पूरी सिटी में कवरेज है इसकी, ठीक है जी, मैन की। नेक्स्ट क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरकनेक्शन होती है नेटवर्क्स की, कॉलेजेस में, ठीक है जी, फिर स्कूल्स में, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशंस में, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल लें, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क बना होता है, कैंपस के अंदर जो नेटवर्क फुल फ्लेज बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब वो यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है, कॉलेज का कैंपस हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैंपस हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर कैंपस का नेटवर्क मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है नेटवर्क टाइप्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैन होता है एक, सैन, SAN, सैन। तो सैन में क्या है, सैन की फुल फॉर्म होती है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। स्टोरेज, सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। इसमें क्या है, ये भी बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टोरेज, जो हमारा डाटा है, इंफॉर्मेशन है, इवन कि कोई भी प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी है, कुछ भी है, कोई प्रोग्राम है, कुछ जो भी हम करते हैं उसको, उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है, इसमें मैं आपको और बताती हूँ, इसमें पैन भी आ जाता है। अब स्क्रीन के ऊपर ये नहीं देख रहे आप, सैन नहीं देख रहे, मैंने आपको सैन भी एक्स्ट्रा बता दिया। स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, एक पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब एक इंडिविजुअलाइज्ड वर्क स्पेस में, मतलब एक इंडिविजुअल जो अपनी वर्क स्पेस में, जैसे सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपना कंप्यूटर के साथ मोबाइल जोड़ लिया, फिर साथ में मैंने अपना स्मार्ट टीवी जोड़ लिया, फिर मैंने अपने ही डिफरेंट एक इंडिविजुअल ने अपने डिफरेंट जो हैं वो गैजेट्स जोड़ लिए, ठीक है जी, पर्सनलाइज्ड वे में, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी।
और नेक्स्ट और भी हो सकता है, वीपीएन भी हो सकता है, आपने सारे सुने होंगे वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये क्या है, ये वर्चुअल बेसिस पे होता तो ये भी प्राइवेट नेटवर्क ही है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है जी। बट जो मेन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो क्वेश्चन जो है इसमें से भी आता है, और मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि ऑड वन आउट होता है, कि आपको ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है, लैन, पैन, वैन या टैन। अब आप क्या बोलोगे, टैन तो कोई है भी नहीं है, लैन पैन वैन तो हमने करा ही है, तो क्या है। आप अगर आपको पता होगा, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के नेम्स पता होंगे, तभी आप उसको स्क्रूटिनाइज कर पाओगे ना, कि ये जो है वो ये वाला नहीं है, बाकी वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, लैन, वी लैन, मैन, वैन, कैन, पैन, सैन, वीपीएन, ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ये नेटवर्क टाइप्स हमने कर लिए, अब नेक्स्ट है टपोलॉजीज। ये नेटवर्क टपोलॉजीज हैं। टपोलॉजीज क्या होती हैं, कि जिससे हम ये पता करते हैं कि कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क्स बने हुए हैं, वो नेटवर्क का लेआउट क्या है, किस लेआउट से बने हुए हैं, किस स्ट्रक्चर्स जो है, एक स्ट्रक्चर क्या है जो नेटवर्क्स एस्टैब्लिश हुए हुए हैं, नेटवर्क जो हमने बनाए हुए हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका लेआउट क्या है। तो उसको लेआउट को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क टपोलॉजीज। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टपोलॉजीज होती हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, रिंग, बस, ट्री, मैश एंड स्टार एंड लाइन, ये सारी टपोलॉजीज हैं, नेटवर्क टपोलॉजीज हैं। स्टार में क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टार। स्टार मतलब कि एक हब कंप्यूटर बीच में है, सर्वर बीच में है, और बाकी उसकी सारी जो है बाकी कंप्यूटर उसके साथ अटैच्ड है, नोड्स हैं, और जो है सर्वर ही सबको जो है वो मैसेज दे रहा है, और सब सर्वर को मैसेज दे रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आपस पे भी इन्होंने आपस में नोड्स ने कम्युनिकेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स ने कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले वो सर्वर को ही मैसेज देंगे, और सर्वर को जो है जिस रिस्पेक्टिव नोड को पहुंचाना है उस रिस्पेक्टिव नोड को वो पहुंचा देगा। तो ये क्या है, दिस इज द structure and the layout of the first topology of computer network, that is star topology. next क्या है, mesh topology। mesh का मतलब होता है कि मशअप सा किसी भी वे में जा सकता है, ठीक है जी। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर 2 सर्वर्स हैं, बाकी कंप्यूटर्स हैं, किस वो इस तरह सा कोई ऐसा कुछ स्टार या कोई बस या कोई रिंग या कोई सर्कल या कुछ इस तरह से नहीं बना रहा, एक बहुत सी मैसी सा जो है वो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये मशअप होता है, ये मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है जी। ये भी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सर्वर्स के कंप्यूटर कुछ अलग हैं, दूसरे सर्वर के कंप्यूटर कुछ अलग हैं, तो आपस में कम्युनिकेट एक प्रॉपर चैनल होता है उससे उसके थ्रू करते हैं। ये टॉपिक जो टोपोलॉजीज है इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको करवा रही हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी रेयर चांसेस अगर एक क्वेश्चन किसी सेट में दिख भी जाए तो जिसने ये पढ़ा होगा वो कर तो पाएगा ना एटलीस्ट। तो नेक्स्ट क्या है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मीन्स एक रिंग बनी हुई है, एक स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है कि इस तरह से लेआउट एक रिंग के डायग्राम से मतलब रिंग ऐसे रिंग से बना हुआ है, और ऐसे ABCDE 5 तरह के कंप्यूटर्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ट्री टोपोलॉजी। एक ट्री की फॉर्म में, ट्री के लेआउट में, ट्री के स्ट्रक्चर में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। फिर क्या है, लाइन टोपोलॉजी। लाइन में मतलब एक लाइन में ही जो है कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। फिर क्या है, बस टोपोलॉजी। आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर जो है बस जैसा दिख रहा है, ठीक है जी। तो ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है बस टोपोलॉजी में। फुली कनेक्टेड में कि अब कहीं से भी कोई भी जो है वो फुली कनेक्टेड मीन्स जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में हैं सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किसी को किसी के साथ मीडिएट नहीं करना पड़ता। कि अगर सपोज कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर डी के साथ कम्युनिकेट करना है तो पहले बी को पहुंचाएगा, फिर सी को पहुंचाएगा, फिर डी को मैसेज पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी मतलब साइमल्टेनियसली कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को मैसेज पहुंचा सकता है। तो ये क्या है, फुली कनेक्शन है। और सबसे ज़्यादा आजकल किस तरह की टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है जी। तो ये क्या है, कंप्यूटर टोपोलॉजीज, जिसमें रिंग, बस, ट्री, मैश, स्टार, लाइन सब आपने कर ली, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और वो क्या है, that is threats to computer security, computer security threats। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड द डिवाइसेस दैट दे
स्टोर और एक्सेस, सब कंप्यूटर की सिक्योरिटी सबसे मस्ट होती है, बिकॉज कंप्यूटर पे हम काम करते हैं, वो कंप्यूटर का अगर डाटा सिक्योर नहीं, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से सिक्योर नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमारा डाटा जो है वो कोई भी हैक कर लेगा, कोई भी चुरा लेगा, कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा, और ये सब चीज़ें जो है वो हैपन हो जाएंगी। तो सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत बेसिक होती है। सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी करें, अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी करें, ठीक है जी, अपने जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी सिक्योरिटी करें, सबकी सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से करनी है हम ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी, हम सिक्योरिटी करते क्यों हैं। प्राइमरी रीजन्स टू सिक्योर आर कंप्यूटर्स, क्यों सिक्योरिटी करते हैं, टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ और डैमेज टू दी हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में जितने हार्डवेयर क्या होता है, जो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं वो हार्डवेयर है सारे, जो टेंजिबल होते हैं, ठीक है जी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी थेफ्ट ना हो जाए, उनकी सिक्योरिटी इशू ना बन जाए, इसलिए जो है वो डैमेज ना हो जाए या कोई और उसको डैमेज ना कर दे, इसलिए सिक्योरिटी जो हम रखते हैं। टू प्रिवेंट थेफ्ट और द डैमेज टू इन्फॉर्मेशन, हमारा डाटा है वो चोरी ना हो जाए, इन्फॉर्मेशन चोरी ना हो जाए, इसलिए हम सिक्योरिटी करते हैं। टू प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस, ठीक है जी, जो भी हम सर्विस कर रहे हैं, इवन की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर्स के साथ, उनकी सर्विस में भी कोई इंटरप्शन ना हो जाए, इसलिए भी हम कंप्यूटर सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, ओके ये दोबारा से अभी पीछे चला गया है, मैं दोबारा से वहाँ जा रही हूँ, यस। तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आप देखिए मालवेयर। सबसे पहले जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को जो थ्रेट होता है उसको हम बोलते हैं मालवेयर, और मालवेयर की फुल फॉर्म क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर की फुल फॉर्म क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अब जिसको नहीं पता, अगर पेपर में आ जाए, कई बार आई हुई है मालवेयर की फुल फॉर्म, पेपर में आ जाए तो क्या होगा, हम सोचेंगे एम से कुछ और होगा, ए से कुछ और होगा, एल से कुछ और बनता है, बिकॉज एक्रोनिम में ऐसा ही होता है ना कि MALWARE, तो सब अल्फ़ाबेट से कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और वो आपको ऑप्शंस भी ऐसे देंगे बना बना करके, एम से कुछ और, ए से कुछ और, एल से कुछ और, एंड सो ऑन। बट इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही शॉर्ट, इसको बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सो मालवेयर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डिजाइन टू डैमेज और डू अदर अनवांटेड एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। मालवेयर क्या है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को डैमेज करने के लिए ही बनाए जाते हैं, और ये अनवांटेड एक्शंस हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो किए जाते हैं, ठीक है जी। कुछ फिशी हो गया कंप्यूटर के, कुछ मतलब कुछ किसी तरह का भी जो है वो, अगर कंप्यूटर में कोई भी डाटा चोरी हो रहा है, कुछ भी डैमेज हो रहा है, वो सारा मालवेयर करता है। तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर आपने सुना होगा, ये वायरसेस सुने होंगे आपने, वायरस हैं, बॉम्ब्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, स्पाईवेयर्स हैं, ये सारे मालवेयर के टाइप्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स भी हैं, टाइप्स भी हैं। अब क्या है, कई बार वायरस के ऊपर क्वेश्चन आया होगा यूजीसी में। वायरसेस क्या होते हैं, वैसे तो हम कहते हैं ना डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, हमारे एंड्रॉयड में या मोबाइल में वायरस आ गया है ना, हमारे इस गैजेट में वायरस आ गया। वायरस होता क्या है, सबसे पहले आप वायरस का फुल फॉर्म देखिए कि वायरस की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस की भी फुल फॉर्म होती है VIRUS, वायरस VIRUS। अब वी से क्या बना, वाइटल, आई से क्या बना, इंफॉर्मेशन, आर से क्या बना, रिसोर्सेज, यू से क्या बना, अंडर, और एस से क्या बना, सीज, SEIGE, SEIGE, अंडर सीज। तो ये क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म है। और वायरस क्या होता है हम सबको पता है, ये एक इन्फेक्शन होती है जो कंप्यूटर को लग जाती है। कंप्यूटर को इन्फेक्शन जो है हो जाती है, और वो धीरे धीरे क्या है, अगर कंप्यूटर में एक भी फाइल में या एक भी प्रोग्राम में वायरस आ जाता है, वो सारे कंप्यूटर की जितनी भी डिफरेंट फाइल्स हैं, सारी की सारी फाइल, सारे के सारे डाटा को जो है वो उड़ा देता है, आग की तरह फैलता। वायरस की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आग की तरह फैल जाता है, ठीक है जी। किसी भी एक फाइल में या किसी भी एक आइकन में आ जाए, किसी भी एक डाटा में आ जाए, किसी भी एक चीज़ में आ जाए, वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो करप्ट कर देता है वायरस, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, वॉर्म्स। वॉर्म्स भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एग्जांपल्स में थोड़ा सा आपको एलैबोरेट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। वॉर्म्स क्या है,
ये दीज आर हार्ड टू डिटेक्ट एज दे आर इनविजिबल फाइल्स। वर्म्स क्या है, इनविजिबल फाइल्स होती हैं, ये हमें दिखती नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन कई बार हमें हमारे कंप्यूटर में या नेटवर्क में आ जाती हैं एंड दे आर हार्ड टू डिटेक्ट। ठीक है जी, तो वर्म्स क्या है, इनविजिबल फाइल्स जो हमारी सिक्योरिटी को भंग कर देती हैं। ट्रोजन हॉर्सेस, ट्रोजन हॉर्सेस सुना है कभी आपने? ट्रोजन हॉर्सेस ये भी एक तरह का वायरस ही होता है, बट क्या है, ट्रोजन हॉर्सेस डू नॉट स्प्रेड लाइक वायरस। वायरस तो आग की तरह फैल जाता है। वायरस अगर एक कंप्यूटर की एक फाइल में आए, सब फाइल्स में आ जाता है, सब डाटाज में आ जाता है, सबको करप्ट कर जाता है। लेकिन ट्रोजन हॉर्सेस क्या हैं, ये इनका इतनी स्पीड नहीं होती, जिस फाइल में जाता है ट्रोजन हॉर्स उसी फाइल को करप्ट करता है, बाकी सारी फाइल्स को नहीं उसका इफेक्ट होता। ट्रोजन हॉर्सेस में और वायरसेस में क्या फ़र्क है? वायरस में वो सब तरफ फैल के सब तरफ करप्ट कर देता है सबको, लेकिन ट्रोजन हॉर्सेस जिस पर्टिकुलर डोमेन में जाता है उसी पर्टिकुलर डोमेन को या उसी पर्टिकुलर फाइल को करप्ट करता है, बाकी किसी भी प्रोफाइल को या फाइल को करप्ट नहीं करता। ठीक है जी, ट्रोजन हॉर्सेस, सो दे डू नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन एज स्पीडी एज दी वायरसेस, ट्रोजन हाउसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, दीज आर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर्स टू डिटेक्ट द ऑनर्स एक्टिविटी एंड मिस यूज ऑल द इंफॉर्मेशन आफ्टरवर्ड्स। स्पाईवेयर क्या है, एक इस तरह से ये भी एक सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ऑनर जिस सपोज किसी भी मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी का डाटा, कंप्यूटर के डाटा चुराना है, तो मिस्टर ए ये जो स्पाईवेयर है मिस्टर बी के कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर देगा, ताकि जो मिस्टर बी जो भी कर रहा है उसके कंप्यूटर की एक एक एक्टिविटी को मिस्टर ए जो है ऑटोमेटिकली उसको दिखे। तो इस तरह से स्पाईवेयर है टू इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर टू डिटेक्ट द ऑनर्स एक्टिविटी, कि जो भी ऑनर है उसकी सारी एक्टिविटी देखे दूसरा पर्सन जिसने ये इंस्टॉल किया है उसके कंप्यूटर के ऊपर, एंड मिस यूज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन आफ्टरवर्ड्स, के बाद में उसी इन्फॉर्मेशन में कोई जो है वो कुछ मैनिपुलेट कर दे या कुछ भी करने के लिए उस मोटिव से ये करते हैं। सो ये मालवेयर बहुत ही मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। ये बहुत ही कह सकते हो डेंजरस है, हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी को जो है वो थ्रेट है ये। और बाकी थ्रेट्स भी बहुत सारे हैं, अदर थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, स्पूफिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, स्पैम। ये आपने कई बार नहीं सुने होते, बट ये होते हैं, ये भी होते हैं। स्पूफिंग क्या होता है, टेक्निकल टू, so this spoofing is the technology to access the unauthorized data without concerning to authorized user। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑथोराइज्ड यूज़र से परमिशन नहीं ले रहे एक्सेस करने की, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी किसी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, स्पूफिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अनऑथोराइज्ड वे से डाटा को जो है वो चोरी कर रहे हैं, डाटा को जो है वो देख रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। स्पूफिंग उसको बोलते हैं। हैकिंग क्या बोलते हैं, हैकिंग इज इंट्रूडिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरे के नेटवर्क में घुसकर उसके नेटवर्क को यूज़ करना एंड कंप्यूटर को यूज़ करना। ठीक है जी, या इंट्रूड करना, दूसरे के नेटवर्क में इंट्रूजन लेके आना या दूसरे की नेटवर्क कंप्यूटर में जो है वो एक्टिविटीज़ को देखना, वो सारी हैकिंग हो जाती है। हैकिंग तो बहुत, इट्स वेरी डेंजरस। हैकिंग में क्या होता है कि जो भी कोई भी कंप्यूटर में जो कर रहा है हैकर, सब कुछ उसका डाटा जो है वो चुरा सकता है। ठीक है जी। क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग ब्रेक इज़ बेसिकली द ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर्स विच इंक्लूड्स पासवर्ड क्रैकर्स, वायरसेस, ट्रोजन्स, वॉर डायलर्स। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, कंप्यूटर के पासवर्ड, क्रैकिंग इज़ द एक्टिविटी टू ब्रेक आउट द कंप्यूटर पासवर्ड्स। हम क्या करते हैं, हम बड़े मज़े से पासवर्ड्स बना लेते हैं। पासवर्ड हमने दे दिया, इस फाइल को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उस पासवर्ड को भी तोड़ने के लिए क्रैकिंग यूज़ होती है, और इस तरह से जो है वो पासवर्ड भी चोरी हो सकते हैं, पासवर्ड भी टूट सकते हैं, और वो फाइल वो चुरा सकते हैं हम। ठीक है जी, क्रैकिंग से। फिशिंग क्या है, ये बहुत डेंजरस है। फिशिंग सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इट्स अ स्टीलिंग the users data like login credentials, debit cards, credit cards informations and account numbers and so on। यहाँ पे क्या है, लॉगिन, जो हम लॉगिन करते हैं ना, हमारे लॉगिंग आईडीज़ बने होते हैं, लॉगिंग पासवर्ड्स बने होते हैं, वो फिशिंग से चुरा लिए जाते हैं। हमारे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाते हैं फिशिंग से। फिशिंग बहुत बड़ा एक ये क्या है, साइबर क्राइम होता है फिशिंग, ये साइबर क्राइम है। इस तरह से भी क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी को ये थ्रेट है सबसे बड़ा, फिशिंग भी। ठीक है जी। स्पैम क्या है, स्पैम को हम बोलते हैं जंक ईमेल्स, स्पैम को बोलते हैं जंक ईमेल्स बोलते हैं। सो स्पैम आपने बहुत बार देखा होगा, आपके जब आप अपनी ईमेल खोलते हो, इनबॉक्स हैं, सेंट आइटम्स है, और नीचे करके स्पैम भी बना होता है। सो स्पैम क्या है, बेसिकली इट इज़ द अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसॉलिसिटेटेड बल्क मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स।
अनसॉलिसिटेटेड का मतलब है कि हमें अब वो चीज़ें चाहिए नहीं होती हैं। कई बार आपने स्पैम खोल के देखा होगा, इनबॉक्स में फिर जो है वो मीनिंगफुल मैसेजेस आते हैं, लेकिन स्पैम में अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस आते हैं या बहुत ही बल्क मैसेज आते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड भी नहीं होते, और वो अगर हम खोलते हैं तो हो सकता है उससे क्या होगा, कई बार इंफॉर्मेशन चोरी भी हो सकती है स्पैम में। कई हमें स्पैम में ज़्यादातर जो है जो आपकी लेटर्स आती हैं वो नहीं खोलनी चाहिए, या अगर खोलते भी हैं तो फटाफट से बंद करके उसको डिलीट करना चाहिए, बिकॉज स्पैम में भी कई बार जो है वो कोई डिटेक्शन के लिए उसको भेज देते हैं स्पैम में भी, ठीक है। सो दीज आर दी जंक ईमेल्स, ठीक है जी। तो ये सब क्या है, ये सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं। और कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, की एरियाज ऑफ कंसर्न ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, की किस तरह से हम जो सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये सॉल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ। कि सबसे पहले क्या है, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें। ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ अपना लॉगिन पासवर्ड या जो भी आपने शेयर करना है कॉन्फिडेंशियल बंदे को दें, ऑथराइज्ड यूज़र को दें, ताकि वो जो है उस डाटा को भी कॉन्फिडेंशियल रख सके और वो आगे दूसरों को शेयर ना करें, ठीक है जी। दूसरा क्या, इंटेग्रिटी। ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डाटा व्हेन नीडेड। क्योंकि जब ऑल्ट्रेशन करनी है डाटा में, आप खुद करें या किसी दूसरे पर्सन से करवा रहे हैं, वो भी जो है उसकी इंटेग्रिटी को, डाटा को मेंटेन रखे, और मॉडिफाई भी जो है उसकी कंस्ट्रेंट्स में रह के करे, और दूसरे से शेयर ना करे, अडल्ट्रेट ना करे, या उसमें जो है वो मैनिपुलेशन ना करे। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी। डाटा शुड बी अवेलेबल टू यूजर्स व्हेन नीडेड, ठीक है। डाटा इस तरह से आप रखें कि बिल्कुल फ्रीक्वेंटली भी कोई भी यूज़ ना कर पाए, लेकिन उन टाइम पीरियड्स के या उन टाइम हॉरिजॉन्स की टाइम फ्रेम से यूज़ कर सके जब जब वो चाहिए होता है। अगर नहीं चाहिए होता तो डाटा जो है वो कोई ओपन भी ना कर सके। ऑथेंटिकेशन, द कंप्यूटर सिस्टम शुड बी एबल टू वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूज़र। सबसे पहले ये देखिए, जो भी अब आपने सॉफ्टवेयर मेंटेन करे होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, उन सॉफ्टवेयर को कोई खोलता है तो उसमें क्या है, उसके लिए पासवर्ड जो है वो सबको असाइन किए होते हैं। पासवर्ड जो जिसको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है वो उसी से खोलता है। अगर वो उससे खोल नहीं पाता है, ठीक है जी, इसका मतलब कोई नहीं खोल पाता। जिसको जो हम देते हैं, असाइन करते हैं, उसी से वो खोल पाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, अथेंटिकेशन होता है कि हम किस किस को जो है वो अथेंटिकेशन या अथॉरिटी दे रहे हैं अपने सिस्टम्स को खोलने की, ठीक है जी। या फिर हम एंटीवायरस भी लोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स में वायरसेस बचाने के लिए। कुछ ऐसे पासवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो पासवर्ड क्रैक भी हो सकते हैं, लेकिन हम कॉमन पासवर्ड यूज़ ना करें। पासवर्ड्स जो हैं ऐसे बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पासवर्ड रखें, जिसमें हर तरह के कॉम्बिनेशन बना के कोई पासवर्ड हम जो है कॉन्फिडेंशियल रखें। फायर वॉल्स जो है इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर्स में। डिजिटल सिग्नेचर्स या ई सिग्नेचर्स जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के नीचे लगाएं लॉकिंग के लिए। ये सारे जो हैं वो कंप्यूटर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो हैं ये सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, ठीक है जी। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने बहुत कुछ कवर करा है। पार्ट 4 में सीरीज़ चल रही है कंप्यूटर बेसिक्स की। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, आज पार्ट 4 भी हो गया। कल मैं कंप्यूटर बेसिक्स पार्ट 5 लेके आऊँगी। तो ये सारा ही कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इससे पहले भी जब आईसीटी मैंने स्टार्ट किया था, आईसीटी का सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आईसीटी फुल फ्लेज कराई थी। आईसीटी क्या होती है, मीनिंग्स हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। आईसीटी टूल्स कराए हैं मैंने आपको और मेरिट्स डीमेरिट्स कराई हैं आईसीटी की। सब कुछ चल रहा है कंप्यूटर का 1 बाय 1, ठीक है जी। सो अगर आपको मेरी वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को। हर वीडियो को लाइक करें जिसको भी आप देखते हैं, इससे क्या हमारी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और keep on sharing, keep on subscribing, keep on liking our videos, and please press the bell icon button for further notifications of our new and upcoming videos. So stay tuned for the next video, and till then, God bless you all, and bye bye for now.